Hi guys, how are you? I hope we all are fine. So okay, today I will be discussing about what I had left in previous classes. So those topic I will touch. Then after that I will try to focus on only numerical. So okay, so up to the transpose of matrix already I had finished, and also the only remaining part is inverse of matrix. So first I will try to complete inverse of matrix. Then after that I will try to close up this concept classes. Then I will all focus on NCERT numerical problem. So if you have any problem in a conceptual, then you should not worry about anything. I will try to focus concept while I will solve it. I would try to solve numerical part. So you should not be bothered about anything. If you have any problem regarding the concept, then if any types of question would come related to those concept, I will try to first clear the concept. Then after that, I will try to solve this question. So okay. So first of all, what had remaining in previous classes, I would discuss first. Then after that, I will proceed on numerical. So first of all, uh, inverse of matrix. Only those part is remaining. Inverse of matrix. Inverse of matrix. First of all, inverse of matrix. If you're talking about inverse of only matrix, how it can be exist and how it cannot be exist. These are two conditions. You must have to follow these two conditions. Then after that, you have to proceed on finding of inverse of matrix. First of all, singular matrix and नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का. तो सबसे पहले अगर हम सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. चलिए चल नहीं रहा है, ठीक है. चलिए इससे लिखता हूं मैं. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. सिंगुलर किसको बोलेगा? किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाए, अगर डिटर्मिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेगा? डिटर्मिनेंट इसका अगर जीरो हो जाए तो उसको हम लोग सिंगुलर बोलेंगे. ठीक है, क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर किसी मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, ऑलरेडी दे आर गिवन इन मैट्रिक्स फॉर्म. इफ यू आर गोइंग टू फाइंड determinant of this matrix, if you are getting equal to 0, then you can say this matrix would be singular matrix. Okay. और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलेंगे उसको? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू नॉट जीरो. इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू नॉट जीरो. इफ यू आर गेटिंग डिटर्मिनेंट इक्वल टू नॉट जीरो, then you can say this is the non-singular matrix. Only inverse would be exist when matrix must be a non-singular matrix. This is the condition for existing of inverse of a matrix. So this is the first you have to check whether this matrix is singular or non-singular. If this matrix is non-singular, then only inverse can be exist. Otherwise inverse cannot be. You are unable to calculate the inverse of this matrix if you are getting determinant is equal to 0. ये कंडीशन आपको याद रखना. क्या रखना है? नॉन सिंगुलर ओनली एग्जिस्ट करेगा कब? जब हमको मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा. नॉन सिंगुलर क्या होती है? जब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू नॉट जीरो. ठीक है, ये कंडीशन अपने को याद रखनी है. सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं? इन्वर्स का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं होती है. सिंपल इन्वर्स इक्वल टू कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये साइन होती है. हाउ कैन यू राइट इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स? फर्स्ट ऑफ ओनली यू कैन राइट इन दिस वे. इन्वर्स मैट्रिक्स एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट. सिंपली आप लोग एडजॉइंट है. सिंपली मैं आप लोग एडजॉइंट बता चुका हूँ किस तरह से फाइंड करने, कुछ नहीं है. आप लोग पिछले लेक्चर में ऑलरेडी आई डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस. सो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड टिल नाउ, you go and watch, then you are going to get all the concept of matrix related to adjoint. Okay, तो ये आपको याद रखनी है, कुछ नहीं है. इन्वर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? ए इन्वर्स एडजॉइंट डिटर्मिनेंट बाय ये हमको चेक करनी है डिटर्मिनेंट की whether it is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स. इफ यू आर गेटिंग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, then you can say this matrix you can find inverse of the matrix. Otherwise you can't. Okay, तो ये आपको याद रखना. ठीक है, तो इसका कुछ नहीं फंडा है, सिंपल ये फंडा है. ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, कुछ इसमें है नहीं करने को. ठीक है, तो चलिए फिर मैं आप लोगों को और आगे चलता हूँ लेके.
देखिए जो भी कंसेप्ट है ना, मैं आप लोगों को कंसेप्ट में कुछ मैं आप लोगों को कमी नहीं करूंगा। जो जितने भी प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन है, जितने भी प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी में जिस तरह के जितने भी टाइप के दिए हुए हैं, अगर कोई भी कंसेप्ट अगर उस पर आती है तो मैं आप लोगों को सबसे पहले उस चीज़ को टच करने की कोशिश करूंगा। उसको अगर न्यूमेरिकल में सोल्व भी कर रहा हूँ, क्वेश्चन सोल्व कर, उसी से मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताऊंगा। तो ये आप लोग दिमाग से निकाल देना कि कुछ सर कंसेप्ट में इतना जल्दी जल्दी बताया, कोई जल्दी नहीं बताया। अगर मैं एक करके लिखा था मैट्रिक्स जो फॉर्म है इससे वैसे, दिस कैन बी एग्जिस्ट ओनली वन इन दिस वे इफ यू मैट्रिक्स इन अनसिंगुलर मैट्रिक्स, में आप लोग बता दिया। आप लोग क्योंकि देख सकते हो बुक में। मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो मैं ये लैंग्वेज फॉर्म में आप लोगों को नहीं लिखा है क्योंकि मेरा एक मेन एम जो है मेरा क्वेश्चन सोल्विंग पे है कि आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो, जितना क्वेश्चन से रिलेटेड जिस तरह के मेथड हो मैं आप लोग समझाऊँ, यही मेरे एक मेन है। इसलिए मैं इस तरह के लैंग्वेज को फॉर्म में नहीं लिखा रहा आप लोगों को। इन्वर्स कैन बी ओनली एग्जिस्ट व्हेन मैट्रिक्स मस्ट बी सिंगुलर मैट्रिक्स। मैं बता दिया, आप लोग समझ सकते हो। मैं मैथमेटिकली बता दिया, वर्बली बता दिया। उस तरह से लिखाना मुझे नहीं लगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। ठीक है, तो फिर चले मैं आगे चलता हूँ। फिर तो आगे जाने के लिए तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ। अगर टू इस टू ऑर्डर के फॉर्म में दिया है मैट्रिक्स, तो सिंपली हम लोग ऐसे, शॉर्ट ट्रिक है ये, बिहार बोर्ड में 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये आप एक अच्छी कंसेप्ट है। कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर जैसे कि आप ऑब्जेक्टिव पेपर कोई भी देने जाओगे, जैसे 12th के बाद आप बहुत सारे पेपर होते हैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के, इस टाइप की क्वेश्चन आती है। मैं ये नहीं बात कहा कि एडवांस में ही आप पाओगे, बट यू कैन गेट इन मेनी एग्जामिनेशन। सो आप इस कंसेप्ट को दिमाग में कुछ है भी नहीं। जैसे 2:2 के फॉर्म में दिया हुआ है, ABCD के फॉर्म में दिया हुआ है मैट्रिक्स 2:2 ऑर्डर का। इसका अगर हमको इन्वर्स निकालना हो, ये मैट्रिक्स दिया हुआ, इसका हमको इन्वर्स निकालना हो तो सिंपली हम लोग कुछ नहीं करना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या होगी, इसका लो मल्टीप्लीकेशन इससे सब्सट्रैक्ट करो तो क्या होगी, AD माइनस BC। ये डिटर्मिनेंट आ गया अपने को। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट आ गई। उसके बाद हमको सबसे पहले फिर इन्वर्स निकालनी है। तो इन्वर्स के लिए मैं क्या बताया आप लोग फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट, ये आप अपने को लगानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे बताओ। तो ये सिंपल है, एडजॉइंट हमको निकालना है तो कुछ नहीं करना है। इसका सिंपल क्या करना है, देखो सिंपल क्या करना है, इसको चेंज करना है। ये इस वाले पोजीशन को, जो इसका पोजीशन इस पे चेंज करना है, इसका पोजीशन इस पे चेंज करना है। इस वाले में डायगोनल में सिर्फ साइन चेंज करना है, कुछ नहीं करना है। देखो जैसे कि AD लिखा हुआ है, ये AD है, ये ABCD के फॉर्म में। तो हमको एडजॉइंट अगर इसका डिटर्मिनेंट, अगर डायरेक्टली इन्वर्स हमको निकालना हो तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट AD माइनस BC। ये तो लिखना ही है अपने को, कुछ नहीं। अब इसका जो हमको करना है, देखो ये वाली D जो है, यहाँ जो D है इसको यहाँ रखना है, यहाँ जो है इसको यहाँ रखना है। तो सिंपली D इधर आ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ आ गया, फिर A ऊपर वाला A यहाँ आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस साइन चेंज करनी है। तो B है C है तो माइनस B सेम रहेगा माइनस C, बस हमको साइन चेंज कर देगा। यहाँ पे माइनस प्लस आ तो माइनस कर दिए, जैसे प्लस है तो माइनस कर दिए, यहाँ पे माइनस मतलब प्लस चेंज कर दिए। बस यही हमने को, ये इन्वर्स इसका डायरेक्टली शॉर्टकट में आती है। ठीक है, ये याद रखिए, कुछ है भी नहीं। D माइनस B माइनस C A, ये डिटर्मिनेंट, ये अपने को इन्वर्स इस 2:2 के फॉर्म में दिया रहे तो आपको ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ नहीं इसमें रखा है, इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये बिहार बोर्ड में यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्क्स क्वेश्चन इन बिहार बोर्ड। and also many other examination has been conducted by our lots of institute and also lots of university. So this types of question you are going to see in this university examination, those who are conducted personally its own examination. So this is the good concept and also as well as easy. So you should not be too much stress on that concept. समझ गए आप लोग? तो ये जी मैं just I'm trying to focus on only one conceptual building, you know. So how can I make a clear concept in front of you? This is the main funda of solving this numerical part. This is the main funda, you know. Okay guys, तो आप लोग बताइएगा प्लीज कैसा लग रहा है, किस तरह से मैं आप लोग बता रहा हूँ। मैं आप लोग पहले बोल चुका मेरा मेनली फोकस अगर न्यूमेरिकल होगा, तो आप लोग देख ही लो किस तरह से मैथमेटिकली मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बताइए कुछ ऐसा अगर आप लोगों ने प्रॉब्लम की या ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप लोग जरूर बताना, जिससे मैं जस्ट आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई ऑल दोज मिस्टेक्स व्हाट आई हैड इनसाइड। सो
I will try to clear out, I will try to improve simply I can say. Okay, चलिए फिर समझ गए इन्वर्स कैसे आए, ठीक है। अब कुछ मैं मेथड की बात कर लेता हूँ, जैसे कुछ अगर मैं एक दो न्यूमेरिकल ले लूँ, चलिए मैं न्यूमेरिकल के फॉर्म में ले लेता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ 1 2 3 4 है, ठीक है। चलिए सिंपल है, इसका अगर हमको डिटर्मिनेंट निकालनी है, सबसे इसका इन्वर्स निकालनी है हमको। इन्वर्स अगर निकालनी है तो क्या इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, मैं आप लोग सामने इसका इरेज करता हूँ। तो ये इन्वर्स निकालनी है तो इसका पहले डिटर्मिनेंट हमको निकालना है। डिटर्मिनेंट क्या होगा बताओ आप लोग, 4 - 6 क्या होगा -2, ठीक है। अब इन्वर्स निकालने के लिए क्या निकालेंगे, एडजॉइंट बाय ए बट डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला है। चलिए इसका डायरेक्टली मैं क्या बताया था आप लोगों को, ये जो है डिटर्मिनेंट इसका आईजीटी रखो, क्या बताया था, ये 4 है तो 1 इस पे जाएगा, 4 की जगह 1 की जगह जाएगा 1, बस इसमें सिर्फ साइन चेंज करनी है, कुछ नहीं करनी है, -2 -3, ठीक है। ये है ना, बताया था ना मैं आप लोगों को, बताओ मैं आप लोगों को ये बताया था, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, तो ये सिंपल हो गई, दिखा दे मैं आप लोग न्यूमेरिकल लेके भी दिखा दिया आप लोगों को, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं कुछ करना है। तो चलिए फिर मैं आगे चलता हूँ। अब इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर इसको मैं इस फॉर्म में ए इन्वर्स क्या, इसको हम एडजॉइंट ए माइनस n1, इसको ये एक प्रॉपर्टीज है, फार्मूला ही बोल सकते हो, एडजॉइंट ए n-1, ठीक है। इसको मैं दिखाता हूँ सिंपली कैसे प्रूफ करके दिखाया था मैं, आप लोग देखे होगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चलिए इन्वर्स मैं प्रूफ मैथमेटिकली प्रूफ, जस्ट आई एम ट्राइंग टू मैथमेटिकली प्रूफ दिस कंसेप्ट, ओके। ए इन्वर्स क्या लिखते हैं हम लोग, बताओ आप लोग क्या है इसका, ए इन्वर्स को क्या लिखते हैं, ए इन्वर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या निकालनी है, डिटर्मिनेंट निकालनी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए इक्वल टू ए इन्वर्स, ठीक है। अब इसका सिंपली हमको डिटर्मिनेंट लगाने दोनों तरफ, क्या, ठीक है, डिटर्मिनेंट लगानी है, तो इसका डिटर्मिनेंट तो लगानी है, तो एडजॉइंट ए इक्वल टू ए -1। तो मैं क्या बताया था, ये डिटर्मिनेंट जो निकाला हूँ मैं, वो क्या होगा, एक स्केलर नंबर होगा कि नहीं होगा, कोई नंबर ही होगा ना। तो मैं क्या बताया, कोई नंबर अगर निकल रहे हैं डिटर्मिनेंट से, कुछ नंबर निकाल रहे हैं तो क्या होती है उसकी पावर, ऐसे बताया था ना मैं आप लोगों को। जैसे कि ये दिया हुआ है 3:3 ऑर्डर के फॉर्म में, हमको निकालना है इसका, ये के को बाहर निकालना है, ये के को हमको बाहर निकालना है। मैं आप लोग डिटर्मिनेंट भी बता चुका हूँ ये कंसेप्ट ऑलरेडी। इफ यू हैव नॉट वॉच दिस वीडियो, जस्ट मेक इट क्लियर राइट नाउ, ओके। तो देखिए मैं जस्ट आई एम ट्राइंग टू पुट इट आउटसाइड फ्रॉम दिस ब्रैकेट दिस डिटर्मिनेंट। तो क्या बताया था आप लोगों को मैं, ये जो अगर इसको मैं बाहर लेके आ रहा हूँ के को, कोई नंबर है तो बाहर, तो जो इसका ऑर्डर है वो सिंपली आ जाएगा बाहर। ये आपको एक फॉर्मूला समझो, जो समझो कंसेप्ट समझो, इस तरह की रखनी है दिमाग में, ये सिंपल आ जाएगी। तो मैं क्या है, तो क्या होगी, सिंपल वही चीज़ है, एक जॉइंट है, मैं बाहर निकाल रहा हूँ, हमको ऑर्डर पता नहीं एन ऑर्डर का है, वो ऑर्डर पता नहीं है ना कौन सा ऑर्डर के, जो ऑर्डर रहती है, तो मैं मान तो एन ऑर्डर किए, कोई क्या ऑर्डर किए, मुझे क्या मतलब, जब दिया रहेगा तब मैं सोचूंगा, ठीक है। तो मैं आप लोग सिंपली क्या बता दूँ, एन ऑर्डर क्या है, तो सिंपली यहाँ एन आ जाएगी, ये एन आ जाएगी, ये हो जाएगी ए इनवर्स, ठीक है। बताओ वही कि इतना क्लियर, ये आ गई, ठीक है। ये इसको आप बाहर ले रहे हो, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ये एक नंबर है, कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कोई नंबर ही होगा। इस नंबर को हम जो बताया मैं, ये कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट बताया हम आप लोगों को, तो इसको डिटर्मिनेंट ढंग से हम बाहर कर रहे हैं, तो क्या होती है कि एन जो ऑर्डर रहती है वो हो जाती है। तो वही चीज़ हमको ऑर्डर पता नहीं है, मान लिए कि एन ऑर्डर किए, तो मैं क्या किया, सिंपली ये मैं डिटर्मिनेंट उसको मैं बाहर किया, तो ऑर्डर मुझे पता है, तो ए एन ऑर्डर मान लिया, तो ए एन बाहर ऊपर हो जाएगा, ए एन ए इनवर्स, ये ऐसे ही है, ठीक है। तो आप बताओ, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ ए इनवर्स, और इसका ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हम लोग डायरेक्टली ए होती है, ठीक है। ये आप लोग नहीं रखे हो, इसकी मैथमेटिकली प्रूफ है, लेकिन ये आपको कोई डिटर्मिनेंट निकालते हो इसके,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो ये आपको डायरेक्टली ए आती है, ठीक है। इस तरह की डिटर्मिनेंट ऑफ इसका ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालोगे तो 1/a आएगी, ठीक है। तो चलिए मैं आगे इसका लिख के चलता हूँ, फिर क्या होगी बताओ आप लोग बताओ। फिर कुछ नहीं करनी है, देखो सिंपली ए ज्वाइंट ए एन पहले से है, इसका ए को हम ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी बताओ आप लोग। तो हो जाएगा सिंपली ए ज्वाइंट ए एन -1 हो, ये ऊपर ले जाएंगे तो ए -1, इसको दोनों को एक साथ लेके तो ए एन -1 सिंपली प्रूफ आ गई कि नहीं बताओ, ये प्रूफ आ गई कि नहीं। एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट, इसका एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं ए एन -1, कितने ऑर्डर का हो, 3 ऑर्डर का हो या 4 ऑर्डर, जो जितना ऑर्डर का इस एन की जगह बैठा दे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एक अच्छी कंसेप्ट है जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन बिहार में यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इन बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव पेपर, यू नो। सो दिस इज द मेन ऑल्सो अगर जैसे और इसमें एक चीज़ और मैं बोल दूँ, अगर तो क्या मैं बोल दूँ आप लोगों को, और समझिए मैथमेटिकली अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, ठीक है। मैं अगर लगे कि इस तरह की आप लोग प्रॉब्लम है तो मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा। तो ऐसा नहीं है मैं जो बता रहा हूँ मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं जो समझा रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हो, इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, मैं उसी से मैं आप लोग रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ मैं। तो फिर इसका एक और देखिए, इसका सिंपल फंडा है। इसी में अगर एक एडजॉइंट एक था उसी के आगे एडजॉइंट और लग जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होना है। देखो सिंपली अगर है, अगर कोई इस तरह का फॉर्म में दिया हुआ है, एडजॉइंट ए था तो ए n -1 था, ठीक है, ये था। अगर एडजॉइंट ए इसे 2 फॉर्म में दिया रहे तो क्या होगा, ए n -1 का होल स्क्वायर। क्या किया हम क्या किया, सिंपली क्या किया, कुछ नहीं किया, व्हाट हैव डन, नथिंग। अगर जैसे अगर इसके आगे एडजॉइंट आप बढ़ाते जाते हो, ठीक है, इसके आगे एडजॉइंट लगाते जाते हो तो वहाँ पे स्क्वायर वहाँ पे एक n बढ़ाते जाना। कैसे, देखो अगर एडजॉइंट एक ये है, एक एडजॉइंट ये है, एडजॉइंट एक ये है, ठीक है, ये 3 मैं 3 बढ़ा, 1 2 3 कर दिया, ठीक है। अगर जैसे 3 किया, कितना एडजॉइंट बढ़ाया मैं, 2 बढ़ाया, एक वहाँ पे पावर 3 हुआ, ए n -1 का होल किया। समझे क्या मैं बोला, बस सिंपल फंडा याद रखनी है, जितना एडजॉइंट हम बढ़ाएंगे उतना ब्रैकेट पे पावर बढ़ाते जाएंगे, कुछ नहीं करना, जितना हम एडजॉइंट बढ़ाएंगे उस पर ब्रैकेट पे पावर बढ़ाते जाएंगे। व्हाट आई टोल्ड यू, इफ यू आर इंक्रीजिंग एडजॉइंट then simply you also you need to increase power of determinant of those matrix, okay. Simply you are increasing the power. If you increase adjoint also you need to increase power, okay. कुछ नहीं कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है, जैसे हम लोग एडजॉइंट और जोड़ेंगे, जितना एडजॉइंट जोड़ेंगे उतना पावर हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे, कुछ नहीं, ठीक है। ये सिंपल हो गई, बताओ था कि नहीं सिंपल, लेकिन ये आप लोगों को अच्छी क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेगी। और ये भी बता ही दिया मैं जो आप लोगों की थी, और के ए के पावर में निकालनी है, 3:3 ऑर्डर किया है, कोई भी ऑर्डर किया तो K3 ये, ठीक है जी, ये सिंपली रखनी है ना, कुछ है कि नहीं, कुछ करना है नहीं करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है अपने को, बस ये रखना है, ठीक है। तो फिर चलिए फिर आगे लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को। अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। मैं आपको उसी समय रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा, जो अगर मुझे लगे कि ये रिलेवेंट आपकी प्रॉब्लम है तो मैं उसी समय आप लोगों को वीडियो के फॉर्म हो या उसी समय कोई सॉल्यूशन के फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा उस चीज़ में, ठीक है। तो आप लोग इजीली आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और ये थियोरेटिकली मैं बोलता हूँ उस चीज़ को, ये कुछ है नहीं, लेकिन स्टेटमेंट में आ जाती है स्टेटमेंट, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर एक्सपेक्ट दोज क्वेश्चन इन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होती है। आप लोग देखे होगे जो आप लोग कंपटीशन में कोई की स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके दिया जाते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, तो उस टाइप की क्वेश्चन तो मैं बोलता हूँ बरवाली। देखो एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंपली क्या बोले मैं, अगर एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका अगर एडजॉइंट निकालोगे आप, वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, क्या बोला समझिए, बताओ। अगर ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट जो हम अगर निकालेंगे वो भी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, और मैं दूसरा चीज मैं जो बोलूँ, और मैं सिंपली चीज बोलूँ, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट जो होगा अगर ओड ऑर्डर का है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का है, तो उसका जो एडजॉइंट होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मैं क्या बोला आप लोगों को, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर का है, ठीक है, ऑड ऑर्डर का है, तो उसका जो होगा एडजॉइंट जो होगा, एडजॉइंट जो होगा सिंपली सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगर ऑड ऑर्डर का है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो अगर ऑड ऑर्डर इवन ऑर्डर का तो क्या होगा, उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या बोला है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑड ऑर्डर का है तो उसका एडजॉइंट जो निकालोगे आप वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर इवन ऑर्डर का है तो उसका अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इवन ऑर्डर का है तो उसका जो एडजॉइंट निकालोगे तो वो भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। मैं क्या बोला, फिर से मैं रिपीट, जस्ट आई एम रिपीटिंग दिस वन, कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इवन ऑर्डर का है तो उसका जो एडजॉइंट होगा वो आपके इवन ऑर्डर की होगा। अगर ऑड ऑर्डर का है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट जो हो जाएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। कुछ नहीं करनी है, सिंपल थी। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बता दिया भरवाली, आप लोग एक दो बार देखना पीछे करके बैकवर्ड करके देख सकते हो आप लोगों को, कुछ मैं लेकिन पूरा क्लियर कर चुका हूँ उस चीज़ को। ठीक है, अब चलिए थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, ये था पेन चल नहीं रही है इसमें। प्रॉपर्टीज क्या है, और ए इनवर्स प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ नहीं ज़्यादा, एक प्रॉपर्टी ये है, अगर ये ए इनवर्स है और उसका इनवर्स आप करते हो तो वो भी ए आ जाएगी। ठीक है, ये याद रखना, कुछ नहीं है। उसके बाद दूसरा तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ए इनवर्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे, सॉरी, अगर उसका आप ये बता चुका हूँ मैं, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 1/a आएगा। ठीक है, कुछ नहीं इसमें, 1/a आएगा डिटर्मिनेंट। अगर ए इनवर्स का निकालते हो आप लोग, डिटर्मिनेंट अगर हम ए इनवर्स का निकालते हैं तो 1/a आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखने दिमाग में, कुछ नहीं है। अगर और भी है, अगर और भी चीज़ मैं बोलूँ, अगर जिसको डायगोनल मैट्रिक्स आप लोगों को दिया हुआ है इस फॉर्म में, A1 A2 A3, ठीक है, डायगोनल समझ गए ना। डायगोनल मैट्रिक्स में बताऊँ आप लोगों को, सिंपली है सारा डी, जैसे कि मैं इसमें लिया हूँ तो A1 A2 A3 0 0 0 0 0 0, इस फॉर्म में अगर दिया, इसको डायगोनल मैट्रिक्स होगी, एक ही डायगोनल होगी जो नॉन जीरो होगी, अदरवाइज सब सारा जीरो होगी, उसी को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं, इस फॉर्म में इसको मैं लिख सकता हूँ। अगर इसका इन्वर्स निकालना हो तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है भाई, क्या करना है, सिंपली देखो इन्वर्स निकालना है तो क्या करना है, सिंपली है 1/a1 1/a2 1/a3। ठीक है, सिंपली ये कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपली ये करना है। ठीक है, 1/a1 1/a2 1/a3 सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ इसका हम लोग कोई कंसेप्ट लगती नहीं है, अगर होगी तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन में एक चीज़ और, जैसे ए बी है, ए बी दिया हुआ है, उसका इन्वर्स निकालना है, तो सिंपली हम लोग इसका अगर प्रॉपर्टीज वाइज जाए, सिंपली हम लोग पहले ऐसे कर सकते हैं इसको, बी इन्वर्स, ये जो होगी पहले आ जाएगी बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, इस ट्रांसफर सेम फंडा ट्रांसफर वाली है, जो फंडा ट्रांसफर भी मैं अप्लाई किया था वही फंडा सिर्फ उसमें भी अप्लाई हो जाएगी, कुछ नहीं करने देना। अगर मान के चलो ए बी सी के फॉर्म में दिया, उसका इन्वर्स निकालना है तो सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, ये सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, कोई इसमें कोई गल नहीं है जी, बताना कोई गल है तो बताना आप लोग। ठीक है, प्लीज़ आप लोग बताने की कोशिश करना चाहिए, अगर कुछ भी अगर लगे कि यार इसमें सर थोड़ा मिस कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग बताना। ऐसे मैं बोला हूँ ना आप लोगों को, एक एक क्वेश्चन में हर वैरायटी का, जैसे अगर एनसीईआरटी का मैं सोल्व कर रहा हूँ ना, तो एक एक क्वेश्चन जो हर वैरायटी की क्वेश्चन है, हर कंसेप्ट पर बनी हुई है, तो आप लोग इस निफिकी हो जाना कि मैं कुछ अगर लग रहा है कि मुझे कुछ अभी बाकी है, तो मैं न्यूमेरिकल जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा
तो आप लोग इस चीज़ से क्लियर हो जाना कि मैं एक एक चीज़ को फिर से दोबारा टच करूँगा, ठीक है, जो भी मैं कंसेप्ट बता दूँ। इसलिए आप लोग निफिक्र होकर जो मैं समझाऊँ उसको समझना, जितना समझ में आया वो भी सही है, नहीं समझ में आया वो भी सही है, क्योंकि मैं और भी करने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो चलिए फिर एक ये हो गई, और सबसे बड़ी बात तो मैं बता ही दिया, और कुछ बचा ही नहीं अब बताने के लिए। और एक चीज़ और है तो मैं देख लेता हूँ, थोड़ा कुछ रह गया क्या। एक जो है आपकी, एक जो है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ए इन्वर्स हम लोग निकालना सीख चुके हैं, और कुछ भी नहीं, यही एक मेन था। मैं बताऊंगा ए इन्वर्स निकालने के लिए 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चलिए फिर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बिहार बोर्ड में आप लोग 6 मार्क्स से 6 मार्क्स CBSE में 6 मार्क्स से 6 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये इजी है, ठीक है, ये 6 मार्क्स आप लोगों का हाथ में इजी है स्कोर करना, ठीक है। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन मैं सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक आपके इसमें काम नहीं आएगी, इसलिए मैं सबसे पहले जो मेथड वाइज है वो आप लोगों को एग्जाम में करना है, इसलिए मैं मेथड वाइज ज़्यादा फोकस करूँगा। और जो मैं बता दूंगा आप लोगों को, जो 1 मिनट के अंदर आपकी इन्वर्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप लोग पहले ये शॉर्ट ट्रिक पे मत जाना, आप लोग सिंपली मेथड में करना है, क्योंकि मुझे एग्जाम में क्या करना है, what you have to do in examination, you have to solve by using method, you should not apply the short tricks. If you apply short tricks, you are not going to get any number, this is that's why I will try to focus on only one method. Then after that, for your information, I will try to give you information about how to calculate within 1 minute inverse. So this is the main funda, but I will try to focus on first method. Then after that, for sake of only knowledge, I will try to give some about the short trick of inverse of matrix. Okay, ठीक है guys, चलिए solution of a matrix, solution of a matrix, ठीक है, solution of a matrix. Simply how can I manage solution of a matrix, how can I manage all those things. Okay, सॉल्यूशन में आप लोगों को बता चुका हूँ, कुछ नहीं करनी है। अगर x इक्वल टू ए इन्वर्स बी, ठीक है, ये सिंपल है, x इक्वल टू ए इन्वर्स बी, ये दिमाग में रखनी है, कुछ नहीं है। इसका हर चीज़ आप लोगों को दिया रहेगा, आप लोगों को x इस तरह से कैलकुलेट करनी है। आप लोगों को जैसे कि क्वेश्चन में दिया रहेगा x का y z, ठीक है, इस तरह से x का वैल्यू y का वैल्यू z का वैल्यू निकालनी है, वही ये सिंपल है। x का मतलब ये हुआ, ए इन्वर्स हम लोग ऑलरेडी जो निकाले हैं अभी, अब मैं बताऊँगा किस तरह से निकालनी है क्वेश्चन। ए इन्वर्स बी, जो बी आपको दी रहेगी बस निकालो, इसका इक्वेट कर दो, वही एक्स आ जाएगी, वही वाई आ जाएगी, बस सोल्यूशन ऑफ ए मैट्रिक्स यही है, ठीक है, कुछ नहीं करनी है। क्या मैं बोला, ये आपकी 6 मार्क्स में इम्पोर्टेंट है, कुछ ज़्यादा नहीं करना। 6 मार्क्स CBSE एज वेल एज बिहार बोर्ड, ओके, BSB, ओके गाइस। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। ए इन्वर्स हम ऑलरेडी निकाला, आप लोगों को सिखा चुका हूँ, बस बी आपको ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन में दिए रहेंगे, बस इसकी मल्टीप्लाई करनी है, जो आपके आएगी वैल्यू उससे एक्स को वाई को जेड को इक्वेट कर दो, बस आपके सामने क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। आप 6 मार्क्स ऑलरेडी यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ओके। तो चलिए फिर, अगर ये चीज़ तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर कुछ दिया है क्या इसमें, देखो, अगर इस फॉर्म में दिया हो तो सिंपल है। अगर इस चीज़ तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। जैसे देखो, अगर ए अगर दिया हुआ है, अगर ए इक्वल टू 0 है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 है, उसको हम क्या बोल सकते हैं। अगर ए इक्वल टू 0 है, उसको हम क्या बोल सकते हैं। अब चलो पहले ले लो आप, ए इक्वल टू नॉट 0 है, ठीक है, छोड़ो आप पहले ए इक्वल टू नॉट 0, पहले हम ये कंडीशन है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, then what we can say about this matrix, okay. First tell me what we can say about this matrix. कुछ नहीं, सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं। अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0, देन आइदर मैट्रिक्स वुड बी ए यूनिक, आइदर वुड बी कंसिस्टेंट। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नॉट 0, देन इसको हम कंसिस्टेंट और अदरवाइज यूनिक बोल सकते हैं मैट्रिक्स। ये यूनिक मैट्रिक्स होगा या कंसिस्टेंट होगा अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा।
ठीक है। अगर वही चीज़ मैं क्या बोला आप लोगों को कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू नॉट जीरो, देन व्हाट वी कैन प्रेडिक्ट अबाउट दिस मैट्रिक्स, आइदर यू कैन से इट वुड बी आइदर यूनिट मैट्रिक्स एज वेल एज कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट होगा यूनिक होगा, ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट A इक्वल टू नॉट जीरो है। ये सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाती है। अगर वही चीज़ A इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होगा तो फिर क्या होगा बताओ ना। सिंपली अगर A ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इनफाइनाइट इनकंसिस्टेंट होगा या अदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसका इनकंसिस्टेंट होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्या बोलेंगे, अगर इनकंसिस्टेंट होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसका भी कंडीशन आती है जो आप लोगों को अभी इंजीनियरिंग में बहुत सारे हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, व्हाट इज द कंडीशन। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को इसमें एक्सपेक्ट, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट दिस इन 12th लेवल। इफ यू गो फॉर हायर स्टडी लाइक I am just already I told you I did my BTech, then I had studied all those things, unit solution, many infinite many solution, इस तरह की consistent, inconsistent, that types of question are coming in during examination, you know. But you just already I'm discussing for the sake of only knowledge for Unix, infinite many solution, consistent, inconsistent. That's why I have discussed about this concept. Otherwise, this is not useful for you. Up to 12th level, I'm not up to 12th level, but you will go for a higher study, then you are going to use all those terms what I told you right now, okay। तो ये सब चीज़ मेन थी। तो फिर मैं क्या बोला आप लोगों को, ये मैं ऑलरेडी बता चुका, ऑलरेडी आई डिस्कस्ड, ठीक है। फिर ये हो गई आप लोगों की शायद, मैं ऑलरेडी आई होप, ओके गाइस, आई होप आई हैव डिस्कस्ड ऑल दोज कंसेप्चुअल पार्ट इन मैट्रिक्स चैप्टर्स। So whatever the prerequisite for your numerical solving concept, numerical solving problem in matrix. So I hope I have discussed all those things. But if you have any problem, just need to put comment in comment section. I will try to focus on those part also, those part also which I have not touched. Okay, but if you are talking about my perspective, I had discussed each and everything within the short period of time. Once you, if you have not understood, please once you, again you visit, watch one video. I hope you are going to get each and everything. Okay? और आप लोगों को लग रहा है कि कुछ मैं आपसे स्किप किया हूँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में कमेंट करना, ठीक, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं आप लोगों को उस टॉपिक लूँगा, अगर मुझे लगेगा कि इस तरह की नहीं और मुझे कुछ करनी है तो मैं आप लोग बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग ये निफिक्र, मैं पहले बोल चुका हूँ कि मुझे विश्वास है कि मैं हर चीज़ को मैं टच कर चुका हूँ, जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हर चीज़ आपकी जो कंसेप्ट रिक्वायरमेंट होती है, मैं हर चीज़ को टच कर चुका हूँ। अब मैं एक एक करके जो मैं क्वेश्चन करवाऊँगा आप लोगों को, देखना मैं जो कंसेप्ट आपकी आएगी, जो कंसेप्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं उसी समय मैं उसको भी टच करके बता दूंगा आप लोगों को। ये मैं आपको बताया था, देखना इस तरह से, तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, आप लोग क्वेश्चन भी सोल्व कर लोगे, आप लोग ट्रिक भी देख लोगे किस तरह सोल्व करनी है, ठीक है। तो फिर गाइस इसको मैं इस थ्योरेटिकल पार्ट को यहीं पे बैंड अप करता हूँ। अब जो मैं लूँगा वो आपको मैं, ठीक है, इस पर मैं न्यूमेरिकल करवाऊँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, थैंक यू।